बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। पश्चिम बंगाल के आसनसोल नगर निगम के वार्ड 23 स्थित शगुन मैरिज हॉल के टेंडर हस्तांतरण को लेकर विवाद तेज हो गया है। कल टीएमसी पार्षद सीके रेशमा और निगम अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जब अधिकारी टेंडर विजेता एमबी एंटरप्राइज को हॉल सौंपने पहुंचे। रेशमा के विरोध के कारण हस्तांतरण रुक गया। कंपनी को सालाना 8.08 लाख रुपए पर संचालन मिला था और 4 महीने पहले ही राशि जमा हो चुकी है। आज भाजपा नेता कृष्ण नंदू मुखर्जी ने कोर्ट मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी पर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद अचानक टेंडर क्यों निकाला गया। ये मेयर, विधान उपाध्याय और मंत्री के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें जनता को नुकसान हो रहा। मुखर्जी ने बताया कि पहले कम्युनिटी हॉल गरीबों को 500 रुपए में मिलते थे, अब 25 से 30 हजार तक चढ़ गए। उन्होंने वादा किया कि भाजपा विधायक बनने पर इन्हें 2000 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने गिरजा मोड़ कार्यालय में प्रेस वार्ता की। नेता शाह आलम ने कहा कि रेशमा खुद टेंडर में बोली लगा चुकी थी, लेकिन हारने पर विरोध कर रही है। उनकी एनजीओ को एक अन्य सेंटर मिला पर भुगतान नहीं किया। प्रसन्नजीत पोतंडी ने फरवरी की आरटीआई का हवाला देकर कहा कि ये हॉल टीएमसी नेताओं के आय स्रोत बन चुका है। पार्षद एसएम मुस्तफा ने मांग की कि टेंडर विजेता को हॉल सौंपा जाए और बाधा डालने पर कार्रवाई हो। विवाद गहराते ही निगम ने रेशमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी। मेयर उपाध्याय ने कहा, रेशमा निगम की आय घटाकर व्यक्तिगत फायदा उठा रही है। ये संपत्ति निगम की है, पार्षद का कोई निजी अधिकार नहीं। कानूनी कार्रवाई होगी। टीएमसी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। এটা কিভাবে পেল টেন্ডার? এটা কিভাবে পেল? মানে টেন্ডার কিভাবে হয়? টেন্ডার তো প্রসেসে হয়। ওটাই যদি হয় তাহলে ওকে বলুন ও সেকেন্ড লোয়েস্ট হয়েছে কি করে এটাতে। এবং দ্বিতীয়ত হলো ঘাগরবুড়িতে ও কি করে টেন্ডারে ফার্স্ট লোয়েস্ট হয়েছে। ও চাইছে যত কম পয়সা দিয়ে কর্পোরেশনকে কম পয়সা দিয়ে নিজে কামানোর ইচ্ছা, আর কিছু না। কারণ ওটা কর্পোরেশনের সম্পত্তি। কর্পোরেশন এতদিন থেকে 1 লাখ কত হাজার টাকা পাচ্ছিল, এখানে টেন্ডার হতে 8 লাখের উপরে পাবো, তো কোনটাতে যাবে কর্পোরেশন? এবার কর্পোরেশন কি করবে মানে কেস হচ্ছে ওর নামে, ওর নামে কেস হবে। কেউ কর্পোরেশনের সম্পত্তি আটকাতে পারে না। আবার বলছে আমি বানিয়েছি মানে কি? কর্পোরেশনের টাকা সরকারের টাকা। আমি আজকে চেয়ারে বসে আছি, আমি যেগুলো বানাচ্ছি গেলে আমার সম্পত্তি, সরকারের টাকা সরকার বানাচ্ছে। দেখুন, প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে তৈরি করা হয়েছিল কী কারণে। সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, সেই অঞ্চলের পাড়ার লোকেদের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান করবার জন্য এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে তৈরি করা হয়। এবং গরিব মানুষ যারা অর্থনৈতিকভাবে যারা পিছিয়ে পড়ে গেছেন, তাদেরকে তাদের পরিবারের বিয়ে হলো আরও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো করবার জন্য এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে ব্যবহার করবার জন্য তৈরি হয়েছিল। 2012 অবধি আমার মনে আছে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলো 500 টাকাতে পাওয়া যেত। যে কোনো কমিউনিটি সেন্টার 500 টাকা, সাফ সাফাই করার জন্য 500 টাকা দিলেই সেই কমিউনিটি সেন্টার পাওয়া যেত। যদিও সেখানেও কাউন্সিলর যদি ইন্টারফেয়ার করতো, ফোন করে বলে দিত, তাহলে অনেক সময় ফ্রি হয়ে গেছে। আজ আমরা কি দেখছি? আজ আমরা দেখছি যে কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলর, সে নিজে সেই টেন্ডারে পার্টিসিপেট করেছে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কি পার্টিসিপেট করতে পারে নাকি টেন্ডারে? সে নিজে সেখানে তার নিজের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে।
2015 থেকে সেই কাউন্সিলর সেই কমিউনিটি সেন্টারটা চালাচ্ছে। উনি বলছেন গরিব মানুষদের জন্য আমি এখানে চালাচ্ছি, আমি একদম মানুষদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য আমি এখানে রয়েছি। মা মাটি সরকারের কাউন্সিলর, মা মাটি সরকারের সরকার চলছে, গরিব মানুষকে সেবা দান করার জন্য এই রকম ব্যাপারগুলো এইসব কমিউনিটি সেন্টারে উনি সার্ভিস দেওয়ার জন্য বসে রয়েছেন। কি দেখা গেল যে 10 বছর ধরে চালিয়েছে, প্রত্যেকটা বুকিং 25,000, 30,000, 32,000, 35,000 করে নিয়েছে। এইরকম কোনো মানুষজন আপনি পাবেন না সেই ওয়ার্ডগুলো থেকে, ওই যে স্লাম एरिया। देखिए, जहाँ तक शगुन मैरिज हॉल का मामला है, हम लोग सब जानते हैं कि शगुन है मैरिज हॉल कॉर्पोरेशन का अंदर है, डाक करके चलता है। तो अगर टाइम उसका पूरा हो गया और कोई डाक जिसको मिला है तो जाहिर सी बात है उसको ही डाक जो दिया उसको ही दिया जाएगा। तो ये माननीय मेयर साहब चूँकि हमारे आसनसोल के जो महानागरिक है वो सबका साथ एक जैसा इंसाफ करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिनको मिला वो देख करेंगे। और हमको देखिए, जहाँ तक अभी आलम भाई बता रहे थे, बंगाल का 90% पुलिस है ना एक पार्टी और एक दल होकर के काम कर रही है। खास करके वेस्ट बंगाल में आप अगर बोल दीजिएगा तो तृणमूल का पोशाक पहने हुए है मगरबी बंगाल का पुलिस, 10% पचासी पुलिस वाले। तो ये जो बहुत सारा मामला है, पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पार्टी का जर्सी पहने हुए है। तो जो शगुन और मैरिज हॉल का जो मामला आप बता रहे हैं, हमको उतना संज्ञान में नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ है, मगर इतना है कि जो डाक अगर हुआ तो उसको ही मिलना चाहिए। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। SIR के पहले ही दिन पश्चिम बर्धमान जिले में बिना किसी बाधा के एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण हुआ। ये जानकारी जिले के जिला शासक S पन्नाबलम ने दी। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मंगलवार से हर वोटर को ये फॉर्म दिया जा रहा है। जिला शासक ने बताया, जिले में कुल 23.27 लाख मतदाता है और अगले 2 दिनों के भीतर सभी मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार से ही BLO अपने अपने क्षेत्रों में BLA को साथ लेकर घर घर जाकर फॉर्म दे रहे हैं। आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में करीब 2000 BLA को इस काम के लिए लगाया गया है। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আজকে SIR প্রোগ্রামে আমাদের বিএলওরা এনুমারেশন ফর্ম বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ করার কাজটা শুরু করেছে। আমাদের ডিস্ট্রিক্টে 2504 বিএলওরা আছে, পোলিং স্টেশন আছে। 2504 বিএলওরাও আজকে বাড়ি যেতে শুরু করেছে। তো আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগামী 2 দিনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম বিতরণ করতে। আমাদের সিও অফিস CCI থেকে সেকশন দেওয়া আছে, ওটা ওই রকম আমরা ম্যাক্সিমাম বিতরণটা করে নেব। তো আমাদের টোটাল ভোটার আছে 23 লাখ 23.27 লাখ।
তো এনাদেরকে প্রতিটা ভোটাররা দুটো ফর্ম পাবেন, 2 কপি পাবেন, একটাই ফর্ম, ওদের নাম ওখানে লেখা থাকবে, দুটো ফর্ম পাবেন। ওটাতে একটা ফর্ম ভর্তি করে যখন বিএলও নেবেন, তো বিতরণ করছেন করে নেবেন, তখন নেওয়ার সময় একটা ফর্ম ভর্তি করে বিএলওর হাতে দিয়ে দেবেন, আর একটা কপি বিএলও থেকে রিসিভ করিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন ভোটাররা। এই সমস্ত ভোটারের বাড়িতে যাবেন বিএলওরা, এটা সবাইকে ট্রেনিং দেওয়া আছে। আর আমাদের বিএলএও 5টা পার্টি এখানে প্রায় 2000-এর বেশি বিএলএ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज कुल्टी थाना अंतर्गत न्यामतपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध झारखंड लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में अवैध लॉटरी जब्त की। स्थानीय एक एजेंट ने भी इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि इलाके में अवैध लॉटरी बेची जाए। তারা এসেছিল বাজারে অনেক জালি টিকিট চলছে, সেই জালি টিকিট ইনভেস্টিগেশন জন্য জালি টিকিট কে বিক্রি করে না করে আমরা তো এজেন্ট, আমরা এটার আমরা সবসময় অপোজিটে থাকি। আমরা এসব টিকিট বিক্রি করি না, আমরা বরং কোম্পানিকে বলি যে এই টিকিটগুলো যাতে বন্ধ করা হয়, যার ফলে আমাদের বেঙ্গলের টিকিটের সেলটা বাড়বে। এটা পুলিশ যে পদক্ষেপটা নিয়েছে খুবই ভালো পদক্ষেপ। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে টোটন বাবু। आसनसोल नगर निगम के कुल्टी के वार्ड 64 व 71 के बीएनआर इलाके में लगातार 2 दिनों से पीने के पानी की समस्या को लेकर सोमवार दोपहर 2 बजे स्थानीय लोगों ने बराकर आसनसोल जीटी रोड पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही कुल्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने की कोशिश करती है। प्रदर्शनकारी लोगों की मांग थी कि मौके पर काउंसलर को बुलाया जाए। बाद में काउंसलर के प्रतिनिधि कृष्णा प्रसाद पहुंचे और कहा कि तकनीकी खराबी के कारण पानी का प्रेशर कम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक सप्लाई सामान्य नहीं होती तब तक टैंकर के माध्यम से पानी दिया जाएगा। आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। दो वार्ड में पानी नहीं आ रहा कल से। कौन सा वही कारण है, वार्ड नंबर 71, वार्ड नंबर 64 में समझ में नहीं आया है किस लिए नहीं आ रहा, हम लोग जान नहीं है। इसीलिए लोग मजबूर होकर नहीं किया है, रोड ब्लॉक किया है, कोई खुशी से किया, सब अपना काम धंधा घर द्वार छोड़ के किया है। 74 में भी किसी के पास पानी नहीं आ रहा, बस इसी के लिए रोड ब्लॉक हुआ है। क्यों पानी नहीं आ रहा उसको बताना पड़ेगा। आप लोग काउंसलर को बोले? काउंसलर को बोले? काउंसलर साहब को बोला गया, काउंसलर साहब बोल रहा है कि हमको मालूम नहीं है, हम फोन कर रहे हैं, हमको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा लोग। जब उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? प्रशासन आया? प्रशासन आया? प्रशासन आया है, प्रशासन बोल रहा बात करके देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, बात करके देख रहे हैं, प्रशासन बोल रहा बात करके देख रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के सेक्रेटरी सुभाजीत बसु का आज विदाई समारोह आयोजित किया गया। वे पदोन्नति पाकर पंचायत विभाग में उच्च पद पर जा रहे हैं। उनकी जगह अब कृष्ण नंदू कुमार मंडल नगर निगम के नए सेक्रेटरी के रूप में पदभार संभालेंगे। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय, निगम आयुक्त अदिति चौधरी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMIC गुरुदास चैटर्जी, कमिश्नर सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मेयर ने कहा कि सुभाजीत बसु एक निष्ठावान व समर्पित अधिकारी है और उन्होंने आसनसोल में अपने कार्यकाल के दौरान अपने काम की स्पष्ट छाप छोड़ी है। वहीं सुभाजीत बसु ने कहा कि वे करीब 7 वर्षों से इस जिले में विभिन्न पदों पर रहे हैं। आसनसोल से उनका भावनात्मक जुड़ाव है और यहां से वे कई सुखद यादें लेकर जा रहे हैं।
অ্যাকচুয়ালি আমি যেখানে যাচ্ছি জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে। এখানে আমার টোটাল ডেট হিসেব করলে প্রায় 3 বছর 4 মাসের মতো, একটু কম বেশি এরকম হলো। তো এখানে যেখানে মানে আমার স্টে হিসেবে আমার চাকরি জীবনে যতদিন বাইরে বাইরে ঘুরেছি, এটাই আমার এই ডিস্ট্রিক্টেই আমি লংগেস্ট স্টে। আমি প্রায় 7 বছর এই জেলাতে ছিলাম। মাঝখানে আমি এসডিও হয়ে বেরিয়ে গেছিলাম, কিন্তু এই জেলাতে আমি ছিলাম। জেলাটা আমার খুব পছন্দের জেলা ছিল, মানে এই শহরটা খুব পছন্দের শহর ছিল। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমি যত জায়গায় চাকরি করেছি বা যেখানে যেখানে গেছি, মানে কলিগদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আমার সব জায়গায় হয়েই গেছে। তো এখানে যখন আমার প্রথম অর্ডার হয়েছিল তখন অনেকে অনেক রকম বলেছিল, আরে খুব কঠিন জায়গা, এই জায়গা কঠিন তো সব জায়গায় আছে। তো এখানে যারা যে মুখগুলো বসে আছে, যাদের দেখছি, অ্যাকচুয়ালি প্রচুর সময় মানে ফাইল নিয়ে আলোচনা হতে হতে আড্ডা হচ্ছে, আর কি হচ্ছে, এইভাবে অনেক সময় কাটিয়েছি। 3 বছরের স্মৃতি প্রচুর, এভাবে বলতে গেলে তো বলা যায় না। সন্ধ্যেবেলাও হয়ে গেছে যে অফিস টাইমের পরে বেরিয়ে যাচ্ছি, তখনও নিচে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে, সেটাও ফাইল নিয়ে হচ্ছে, গল্পও হচ্ছে, ফাইল নিয়েও কথা হচ্ছে। তো আমি বলবো যে আমার কাছে এই স্মৃতিটা খুব চিরকালের জন্য খুব সুখের একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। आज आसनसोल स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म स्थित स्टेट फूड प्लाजा में IRCTC की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार के देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत अगले साल 18 जनवरी से बेतिया से दक्षिण भारत यात्रा ट्रेन शुरू की जाएगी। ये यात्रा 14 रात 15 दिनों की होगी, जिसमें यात्री तिरुपति बालाजी, रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और जगन्नाथ पुरी जैसे प्रमुख तीर्थों का दर्शन कर सकेंगे। इस ट्रेन में यात्री बेतिया के अलावा रक्सौल, दरभंगा, समस्तीपुर, पाटलिपुत्र, पटना, जेसीडी, आसनसोल, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, खड़गपुर, हिजली और बालेश्वर स्टेशन से भी चढ़ उतर सकेंगे। बुकिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर 8595904077 जारी किया गया है और वेबसाइट www.irctctourism.com पर भी टिकट बुक किए जा सकते हैं। यात्रा 3 श्रेणियों में होगी। इकोनॉमी 27,535, स्टैंडर्ड 37,500 और कंफर्ट 51,405। श्रेणी के अनुसार रेल यात्रा, होटल और वाहन की सुविधाएं होगी। पूरे सफर में केवल शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा और सुरक्षा व चिकित्सा की पूरी व्यवस्था रहेगी। ये यात्रा 1 फरवरी को समाप्त होगी। आपको जानकारी है कि IRCTC भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाता है और इसका टाइम टू टाइम हम लोग डिफरेंट आइटिनरी में इसको इंडिया की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं टूरिस्ट को। तो ये एक्चुअली देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलता है। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग एक जनवरी में 2026 18 जनवरी को एक बेतिया से ट्रेन खुल रही है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जिसको हम लोग लेके जा रहे हैं साउथ इंडिया की तरफ। और ये ट्रेन आसनसोल के ऊपर से जाएगी, स्टेशन के ऊपर से। तो जो भी लोग आसनसोल के क्षेत्र से है ये लोग आसनसोल में बोर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें जो हम लोग साउथ इंडिया का ट्रिप कर रहे हैं इसमें साउथ इंडियन का डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे तिरुपति, रामेश्वरम, मादुराई, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन और पूरी धाम भी ऐड किया है इस बार। तो ये 2 नया जगह हम लोग ऐड करके इसको चला रहे हैं।
4 नवंबर की सुबह से दुर्गापुर महकमा अदालत बार एसोसिएशन चुनाव का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया। हर 3 साल में होने वाले इस चुनाव में इस बार 26 पदों के लिए कुल 97 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयुक्त कंचन मित्रा के मुताबिक इस बार कुल वोटर संख्या 923 है और मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। कोर्ट परिसर एवं बूथ के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। सुबह से ही वकीलों में मतदान को लेकर उत्साह देखा और वोट डालकर कई वकील अपने रोजमर्रा के कार्यों में लौट गए। अब नतीजों के लिए बुधवार तक इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा कि अगले 3 सालों के लिए नई कमेटी में कौन कौन चुने जाएंगे। দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোট চলছে, শান্তিপূর্ণভাবেই হচ্ছে, ভোটারদের ভেতরে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, এখনও অবধি সব ঠিকই চলছে। আমাদের মনে হচ্ছে যে আজকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ভোট হয়ে যাবে। আর ভোটের নিয়মকানুনগুলো বারবার বলা হচ্ছে, সবাই সেটাকে ফলো করছে এবং আমরা আশা করছি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ভোট করবে। কতজন ভোটার আছেন? ভোট হচ্ছে 923 জন টোটাল ভোটার, তার ভেতরে যতজন আসছে দেখা যাক কতজন আসে। আমরা 923 জনকেই সাহায্য করার জন্য বসে আছি। মোটামুটি কতক্ষণ সময় লাগবে? সময় আমাদের অফিসিয়াল টাইম হচ্ছে 5টা অবধি, তারপরেও যারা লাইনে থাকবেন টোকেন দেওয়া হবে। 5:30 অবধি আমরা ভোট দেবো, 5:30 অবধি ভোট চলবে। স্যার আপনার নাম? কাঞ্চন মিত্র, আমি একজন ইলেকশন কমিশনার, আমার সঙ্গে আছেন কৃষ্ণ গোপাল, আমরা দুজনেই জয়েন্ট ইলেকশন কমিশনার। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। কেউ মারা গেছে আমাদের এখানেই আছে, ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত যে সমস্ত আছে আমাদের এখানেই রয়েছে, যে তার 60 লাখ টাকা খরচা হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর আর কোনো টাকা পয়সা পাচ্ছে না। পাশাপাশি আমাদের যে সমস্ত মনে করুন পাইপ লাইনের কাজ করতে গিয়ে যাদের কাছে পাইপ নিয়েছি, যে সমস্ত মহাজনদের কাছ থেকে কেউ রড নিয়েছে, কেউ সিমেন্ট নিয়েছে, আবার তাও বলবেন আপনাদের কাছে কিছু কথা। হ্যাঁ, তো এই অবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি, আমরা আজ পথে নেমেছি, রাস্তায় শান্তিপূর্ণ অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা বারবার চিঠি দিয়েছি, ডিএমকে চিঠি দিয়েছি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছি, তারপর চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠি দিয়েছি, ইঞ্জিনিয়ার ইনচার্জকে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো সুরা আমরা পাইনি। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।